Yes, good morning everyone. We will continue with the coordination compounds. And yesterday we had seen Werner's theory. Werner theory is the postulates. So Werner theory is all about coordinate bond between metal ion and the ligand. So central metal atom or ion and ligands, they create a bond known as coordinate bond. And Werner theory has explained tried to explain about this coordinate bond. And through its postulates, we can revise in short the Werner theory. What it is all about Werner theory? That first postulate क्या है कि metal atom has, yes please, has two valencies. सही है? Two valencies. What was the first valency? Primary. It is also termed as ionizable valency. Ionizable valency. And the second one is what? Secondary, which is non-ionizable. Which is non-ionizable valency. Then the second postulate comes. What was that? Second postulate? Yes, ionizable valency has entities. Ionizable valency has entities. Yes, which satisfies. Yes, that is important. Which satisfy the primary valency. Primary valency, and mostly it is satisfied by anions. Mostly satisfied by anions. Mostly satisfied by anions. Then the third is what? Non-ionizable valency. Non-ionizable valency. इसका क्या हाल है? Ionizable valency. Yes, please. Has entities which satisfies secondary, yes, satisfies secondary valency, and it is satisfied by anions as or neutral molecules mostly ligands है ना, neutral molecules as ligands. तो ये anions यहाँ क्या रहेंगे? In the form of ligands. Molecule क्या रहेंगे? In the form of ligands. अब ये तीन postulate हो गए, तो ये example में समझ सकते हैं हम. What we see here, that what is the primary valency and secondary valency in example number 1? We will separate it. CO cobalt NH3 4 times Cl2 in this box bracket plus Cl minus 1. तो ये क्या हो गया? This is what? The secondary valency, which is non-ionizable. Non-ionizable means it will not break, it will not dissociate into cobalt metal, ammonia and chloride ion. This will remain intact, and we call it as secondary valency or non-ionizable valency, and this is the primary valency, which is ionizable. और ये ionizable है valency, इसीलिए कल हमने देखा था कि अगर ये कॉम्प्लेक्स को पूरे हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, AgNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो प्रोडक्ट में आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. करेक्ट है? वो काय का होगा? AgCl का. हाउ मेनी मोल वी एक्सपेक्ट AgCl? 1 mole. There are 3 chlorine or chloride we see, but this AgNO3
में से जो सिल्वर है, सिल्वर आयन, दैट विल रिएक्ट विद दिस क्लोराइड आयन, क्योंकि ये सेपरेट हो गया अपने कॉम्प्लेक्स से, आयोनाइज हो गया, तो ये सेपरेट एनायन मिला सिल्वर का, ये कैटायन, they will combine and produce a precipitate of AgCl. This chloride still remains in the box bracket, not getting ionized, तो इसका तो क्वेश्चन ही नहीं है कि ये Ag से रिएक्ट होगा. Is it clear? तो that's why we call this as ionizable. ये वैलेंसी जो बॉक्स ब्रैकेट के पहले या बाद में, कल हमने K3 FeCN6 का एग्जांपल देखा था या K4 FeCN6 का एग्जांपल, तो उसमें पोटेशियम पहले लगाया था, करेक्ट है? तो वो पोटेशियम आयोनाइजेबल था, बाकी का जितना भी बॉक्स ब्रैकेट में है ये नॉन आयोनाइजेबल सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है. सही है? तो ये आयोनाइज नहीं होगा, सिर्फ क्लोराइड आयोनाइज होगा तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा. अगर ये क्लोराइड को 3 टाइम्स कर दे यहाँ पर, तो आपको 3 टाइम्स AgCl मिल जाएगा. 3 and 2 5, but still we get 3 moles of AgCl. So that is what the point to be remembered here. So सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, प्राइमरी हो गई, पोस्टुलेट समझ गया. फोर्थ वैलेंसी क्या बोला था उसने? फोर्थ पोस्टुलेट रादर, व्हाट वाज द फोर्थ पोस्टुलेट? यस, सेकेंडरी वैलेंसी हैव फिक्स क्या? फिक्स spatial arrangement. What do you mean by spatial arrangement? Spatial arrangement means given 3-dimensional arrangement, and we also know if coordination number is 6, तो क्या spatial arrangement होगा? coordination number 4, तो क्या होगा? ये octahedral बनेगा, and this will be tetrahedral or square planar. So these are the few postulates of Werner theory we had seen yesterday. And drawback भी बोल दीजिए अब ऐसे इसके ड्रॉबैक आपसे बताया था हमने वर्नर्स थ्योरी के ड्रॉबैक. यस, क्या ड्रॉबैक है इसका? शॉर्टकमिंग क्या है? यस, ड्रॉबैक, इट फेल्स टू एक्सप्लेन. Very good. Fails to explain, important point. Fails to explain directional character or directional nature of coordinate bond. तो coordinate bond का कोई direction होता है या नहीं? It fails to explain. Second point क्या है? It also fails to explain. Yes, magnetic and optical properties of coordinate or complex ions. These are the few very important drawbacks of it. So this is all about Werner theory. Now today we will take classification of complex ions. So next heading रहेगी classification of complex ions. So complex ions are classified 2 types. In 2 ways we can have the classification. So first classification of complex ion. Classification of complex ion on the basis of on the basis of number of ligands. तो फर्स्ट है इसमें
होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक होगा सेकेंड वाला। तो फर्स्ट है होमोलैप्टिक, क्लासिफिकेशन ऑफ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, अब होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस में आप क्या देखेंगे कि जो लिगेंड है वो सिर्फ एक ही लिगेंड एट अ टाइम, वन टाइप ऑफ लिगेंड सराउंड्स द मेटल एटम और आयन। वन टाइप ऑफ लिगेंड सराउंड्स द मेटल आयन। जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ अभी हमने लिखा था, निकल कार्बोनिल 4 टाइम्स। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ओनली कार्बोनिल ग्रुप आर सराउंडिंग दिस सेंट्रल मेटल आयन, क्रिएटिंग बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल निकल आयन। तो ओनली वन टाइप ऑफ ligands surrounds the central metal atom. Central metal atom. Only one type of ligand around the central metal atom. Then it is known as homolaptic. Example, CONH3 6 times 3 plus. अब इसमें 6 ammonia molecule, they are around this cobalt, only one type, homolaptic. Homolaptic complexes. नेक्स्ट हेट्रोलैक्टिक होगा, वो तो आप कभी भी बता ही सकते हो, 2 or more than 2. हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक complexes, when 2 or more type of ligands, when 2 or more types of ligands are bonded to central metal atom, central metal atom or ion, then those complexes are known as heterolaptic. Heterolaptic. So first example, ammonia and chloride ligands are around cobalt. इसको क्या कंपाउंड बोलते हैं? ONO को NO2 नाइट्राइड, नाइट्राइड NO2 है ना। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ये कौन से टाइप का लिगेंड है? हमने पढ़ा था एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, एट अ टाइम वन विल बी एक्टिव, अदर इज नॉट, तो ONO2। तो ये एक लिगेंड हो गया यहाँ पर, और दूसरे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स हियर। सो मोर देन
two or more than two, when ligands around this central metal atom, then we call it as heteroleptic complexes. So simple है classification, homoleptic and heteroleptic. Next classification on the basis of charge on the complexes. Complexes are also classified on the basis of charges on it or over it. Classified on the basis of charges. हाँ जी. Now here, अब क्या हो जाएगा चार्जेस? चार्ज तो पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो एक रहेगा कैटायनिक, दूसरा होगा एनायनिक और थर्ड क्या होना चाहिए? न्यूट्रल. सो थ्री टाइप्स. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ complexes on the basis of charges present on complexes. तो फर्स्ट टाइप लिखते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस. कैटायनिक complexes. Cationic complexes. Cationic complexes. Okay. A positively charged coordination sphere. A positively charged coordination sphere creates a cationic complex. Example, zinc NH3 4 times 2 plus is a cationic complex. सेकेंड एग्जाम्पल, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा था कोबाल्ट NH3 5 times Cl SO4. This is also cationic. पॉसिबल है. जो डायरेक्ट चार्ज है वो तो दिख ही रहा है अपने को, बट व्हेन वी हैव सेकेंड प्राइमरी वैलेंसी satisfied by certain ions, then we can get this as a cation. तो इसका आयोनाइजेशन अगर हम करेंगे तो मिल जाएगा हमें कोबाल्ट NH3 how many times? 5 times Cl 2 plus SO4 2 minus. So this is also a cationic complex. Third example, FeOH2 6 times Cl2, 6 times Cl2, 3 times Cl2, FeH2O 6 times Cl3, हाँ जी, कैटायनिक बनाएंगे आप. So cationic complexes.
तो कैसा है, सेकेंडरी स्फीयर पे भी अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो वो कैटायनिक। पूरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है पॉजिटिव तो कैटायनिक, और अगर सेकेंडरी स्फीयर यानी बॉक्स ब्रैकेट के ऊपर चार्ज बन सकता है तो वो कैटायनिक या एनायनिक जैसा रहेगा। ओके, नाउ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्सेस इन विच complex ion carries negative charge are called as anionic example K4FeCN6, तो इसमें तो आयोनाइजेशन करना ही होगा आपको, है ना। तो ये मिल गया हमको 4 टाइम्स K+1 प्लस FeCN6, how many times negative charge, 4 minus, correct. Next K+1 plus AgCN2 times anion पे चार्ज बेटा -1. Yes, now sodium +1 plus AgH2O 2 times -1. So ये एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आ गया। Okay, third type, neutral complexes. A neutral coordination complex, a neutral coordination complex does not possess cationic or anionic secondary sphere. Cationic or anionic secondary sphere. Example,
Second example. Okay. So this is about the classification on the basis of charges carried by the complex ion. तो first क्या देखा आपने? Cationic, second anionic, and third is neutral complexes. Okay. Now next point we take is a very important one, IUPAC nomenclature of coordination complexes. IUPAC nomenclature of coordination complexes. So IUPAC rules. अब इसमें कुछ वेरिएशन आते जाते हैं तो वो एक एक करके समझेंगे. First point, in naming the complex ion or neutral molecule. In naming the complex ion or neutral molecule, the name of ligand is mentioned, which is followed by the name of central metal atom or ion. Central metal atom. तो कॉम्प्लेक्स अगर आपका न्यूट्रल है या फिर सिंपल कॉम्प्लेक्स आयन है, यानी वो कैटायन और एनायन, इसीलिए अभी आपको कॉम्प्लेक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया कि वो अगर आयनिक फॉर्म में है, कैटायन डायरेक्टली चार्ज दिख रहा है अपने को. जैसे एग्जांपल अभी हमने लिया था एक चार्ज वाला एग्जांपल, फिर से बोल सकेंगे, CONH3 6 times 3+. तो ये कैसा हो गया? ये कैटायन हो गया डायरेक्टली. तो ऐसे टाइप के कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल वाला अभी हमने एग्जांपल देखा था NiCO4 टाइम्स, तो न्यूट्रल वाला. इसमें पहले लिगेंड का नाम और बाद में मेटल और आयन का. तो जस्ट समझने के लिए अभी इसमें अगर नोमेनक्लेचर देना है आपको फर्स्ट एग्जांपल में, तो क्या लिखेंगे आप? ये NH3 कौन सा लिगेंड है? अमोनिया. कितने टाइम है? 6 टाइम्स. तो हेक्साअमाइन कोबाल्ट. अब कोबाल्ट को CO ही लिखना है आपको. हेक्साअमाइन कोबाल्ट वैलेंसी 3.
अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा जब आप पूरा नोमेनक्लेचर लिखेंगे। तो आपको समझाया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लिखना है हमको, है ना। तो जस्ट नाउ एक सिर्फ समझने के लिए, ये पहले मैंने लिगेंड लिखा, बाद में मेटल आयन लिखा, और मेटल आयन जब लिखूंगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे मेंशन करना होगा रोमन में, ठीक है। हाँ जी, यहां पर तो वो चार्ज नहीं, ये इसका यहां से निकलेगा ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये थोड़ी ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, हमको मेटल आयन का निकालना है। हमारा फॉर्मूला था ना ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने वाला, एक बार बता सकेंगे? चलिए रिवाइज करो तो। चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस चार्ज ऑन लिगेंड। चलिए यहीं पर अप्लाई कर लेते हैं। अब चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स कितना लिखे? 3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट x, चार्ज ऑन लिगेंड 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। ये 3 को आप रोमन में इन अ ब्रैकेट यू विल राइट, ठीक है। पैरेंथेसिस बोलते हैं ब्रैकेट को, तो पैरेंथेसिस में रोमन में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना होगा आपको। क्लियर? ओके, तो ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 हो गया। कितना टाइम है? हाँ? 5 मिनट। वो 7-8 है, ये 5 बोलती है। सेकेंड, द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, द नेम ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, द नेम ऑफ anionic ligand, the name of anionic ligand are obtained, name of anionic ligand are obtained by changing the ending, अब जैसा हम सफिक्स चेंज करते थे, यहां भी वैसा ही सफिक्स चेंज करना होगा। चेंजिंग द एंडिंग IDE इन्वर्टेड कॉमा में टू, इसको चेंज करेंगे 0 में, O में, आई एम सॉरी, IDE टू O, एंड ATE 8 अगर आता है, ATE टू एटो। कुछ अजीब सा है ये, बट वी हैव टू गो थ्रू दिस। कैसे चेंज करेंगे, है ना। तो एनायनिक लिगेंड अगर है अपने पास में, तो उसे चेंज करना है। तो IDE जैसे क्या चेंज करना है, देखेंगे, फोकस करना है। IDE बहुत सिंपल है, क्लोराइड है ना। IDE आ गया सफिक्स लास्ट में, माइनस IED प्लस O, तो क्या बन गया ये? क्लोरो। तो वैसे ही बोलते हैं हम, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सही है ना यश? क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, लाइक दैट। और साइनाइड अगर आ गया, तो साइनाइड को क्या बोलेंगे फिर? अभी साइनो, है ना। IDE को O से रिप्लेस करना है, और एक साइनाइड हो गया। अच्छा, सल्फेट आ गया, तो अब दूसरा वाला सल्फेट को क्या करना है? ATE को कैसे चेंज करेंगे? ATO, सल्फेटो बोलेंगे इसको, सल्फेटो।
अब अगर ये नाइट्रो अगर होता है, नाइट्रो NO3-1 नाइट्रो, तो ये क्या बनेगा, नाइट्रेटो। ये कुछ अजीब सा है, नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। एनायनिक लिगेंड है ना। कार्बोनेट अगर आता है, कार्बोनेट CO3 2-, नाइट्रो का नाइट्रेटो बनेगा। वो IUPAC ने लिया कैसे है वो प्रश्न नहीं करना पड़ता है ना। दीज आर द थंब रूल जो वी हैव टू फॉलो। तो ये इसमें ऑलरेडी O तो है, फिर क्यों जरूरत है उसको, बट इट इज टू बी कॉल्ड एज नाइट्रेटो। एनायन है ना ये। अब कार्बोनेट, आप बोल दीजिए कार्बोनेट को क्या बोलेंगे हम, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, आई एम सॉरी, हाइड्रोक्साइड OH-1। हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। देन ऑक्सलेट, 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 ऑक्सलेट C2O4 2-, ऑक्सलेटो, it is oxalato. Next comes nitrite NO2-1, nitrite। तो क्या बन जाएगा ये, नाइट्रो। देखिए कब होगा, when nitrogen is creating the bond for nitrogen bonded ligand. This is applicable for nitrogen bonded ligand.